क्या क्या गया? कृषि मने अरे यार શું છો આને બોલાવો ને કોઈ યાર એલબોટ થોડી ને અમારે 4 વાગ્યા થઈ યાર તું ટીવી જો ને યાર બપોરના કેમ લોહી પીવે છે યાર કોઈ વસ્તુમાં रास्ते के साइड में अपने मोबाइल को देखते हुए
Good evening, everyone. Can I request all of you to keep your window on mute, but start your video so that I can see all the lovely faces. You guys can stay on mute, but just start your video. Hello. Yes, Dilip. Yes, Good, Harsh. good afternoon, all the students present here. I am Harsh Jain, Secretary of Ahmedabad branch of Vikasa, welcoming all the students and our expert faculty today for the session. It would be a good opportunity for me to introduce our today's faculty, Veena Mukhi ma'am. I hope I am audible to everyone. Yes, Harsh. Ma'am, am I audible? Yes. Okay. Our today's expert faculty, Veena Mukhi ma'am, is a graduate from prestigious Dale Carnegie Institute. She has also done Masters in Business Administrate in Finance stream. She has more than 10 years of experience in banking and financial service industry in India and international markets. She is a professional corporate trainer and a visiting managing faculty in several business management colleges across India. Some of the corporate trainer and a visiting management faculty, and some of her extraordinary clients are Kotak Securities Limited, Satya Sai Heart Hospital, Adani Wilmar Limited, 5paisa.com, the Entrepreneurship Development Institute of India, Gandhinagar, Institute of Management, Nirma University, Petroleum Engineering College, PDPU, Ahmedabad, Institute of Management, GLS, Institute of Chartered Accountants of India, that is ICAI Ahmedabad branch, and Gandhi Corporation Limited, and event management company. It is a very great opportunity for us to learn something from you today, ma'am. So I would like to hand over today's session to you, ma'am. All over to you. Thank you so much, Harsh. I would again, before I start, I would like to see lovely faces. Can you guys please switch on your videos? You can be on mute, but I want to see you guys. Otherwise, we could have done the conference call itself instead of going for Zoom meeting. Yeah, thank you, Dilip. Thank you, Haji Mohammed. Come on, quick, already we are running late by 10 minutes. Quick, quick. आता है या नहीं आता? वीडियो कैसे ऑन करते हैं? In the process and I'll be learning now. Come on guys, इतना तो मेरे को गारंटी है मेरे से ज्यादा आता है आप लोग को ये चीजें, है ना? I'm very much confident about it. When I used Zoom first time, तो मुझे भी इतना देर नहीं लगा था. कुछ तो generation gap है अपने बीच में, है? So I'm confident you guys know it way better than me to use Zoom. Quick, quick. What are others waiting for? वो हाजी मोहम्मद अभी ओपन करा वीडियो फिर बंद कर दिया. क्विक क्विक क्विक. कोई ड्रेस कोड नहीं है, घर के कपड़ों में शॉर्ट्स टी शर्ट्स में होगे तो भी चलेगा. कोई पैंट पहनने मत भागो प्लीज. We cannot afford that much of time. I wanted an interactive session. That is the reason I kept limited seats rather than taking 70, 60 or 50 students. So please, जितना देर जल्दी स्टार्ट करने में करोगे उतना ही देर अपने को एंड करने में होगा. Harsh, can you please get everyone to switch on the videos? Yes, ma'am. Please, every student अपना वीडियो ऑन कर लो, कोई तकलीफ नहीं है. आप शॉर्ट पैंट किसी भी कपड़े में होगे, कोई तकलीफ नहीं है. एंड यस, राहुल, सौरभ, व्रत चौकसी, यश, पृथ्वी मौर्य, परिता, मिस्टर हाय, हर्षा हरवानी, सीए हर्ष मेहता सर, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. इट वुड बी एन इंटरेक्टिव सेशन. अगर आप वीडियो ऑन कर लोगे तो ज्यादा मजा आएगा.
Yes, very good, Vraj. I ensure you there is no theory and there will no boredom. आपको टॉपिक के नाम से पता चल सकता है कि इट्स अबाउट टोनालिटी एंड थ्रू स्टोरी टेलिंग. अभी स्टोरीज किसको अच्छी नहीं लगती वो मुझे समझ नहीं आता है यार. When I go to corporates, even 50+ के जो लोग होते हैं ना मेरी ऑडियंस में, even they enjoy कि हाँ स्टोरी टेलिंग है तो we will come. उसमें भी आप लोग इतना भाव खा रहे हो. Come on, quick. हर्षराव हर्षा हरवानी मिस्टर है, वीडियो ऑन Okay, करिए with आपका. Harsh, now I cannot afford to spend any more time requesting them to switch on your videos. It's up to them. It will be their loss, not mine. Yeah. So I'll just continue. And if in between, if I see most of them going back and switching off their videos, then I will also turn off my video and you will hear me only. Then there is no point doing session on tonality or body language. Yeah. If you really don't want to see me, then it's up to you guys. Yeah, because I cannot keep on requesting. I thought CA students are will be way much better and matured audience, guys, please. Yeah, so without wasting any time, I would just like to know, एक करके आप unmute बीच बीच में कर सकते हैं in order to interact. क्योंकि टोनालिटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें if we don't interact, if we don't speak up, we will never be able to get it. Yeah. So first and the foremost thing what I wanted to know was Haji Mohammed will tell me when you heard that it's about tonality through storytelling, what came to your mind first? चाहे अच्छा बुरा, that's completely okay. It's about new thing to discuss. Okay. और क्या आया? New experience. And maybe something new, कुछ जानने मिलेगा, कुछ अच्छा होगा या कुछ सीखने मिलेगा, something like that. Thank you Haji. Sneha, quick. Sneha, can you hear me? Yes, ma'am. Yeah, Sneha. क्या सोचा था ये अपना ये सेशन अटेंड करते टाइम? It may be something related to this economy, or maybe I don't know. I heard the word tonality for the first time. ओके अच्छा मेरे को ये बताओ कि आप लोग हिंदी प्रेफर करते हो कि इंग्लिश के गुजराती? वैसे गुजराती मैं बोलूंगी नहीं, बट हिंदी या इंग्लिश क्या प्रेफर करते हो? बोथ मैम, बोथ राइट, मिक्स विल डू. बोथ कोई नहीं चलेगा. Okay, so I'll quickly tell you, Sneha, it's nothing about economy. So I'm so sorry to upset you on that. Yeah, today's session is on tonality. How tonality plays an important role in communication. How tonality plays very crucial role in our day-to-day life. Yeah, without going into much detail, because we have already spent 15 minutes of time requesting people to switch on the videos and get connected. I think I'm left with shorter time. So I will quickly, since it's a session of storytelling, I'll quickly tell you one story about the mouse. Okay? Good to go? Yes, ma'am. Can I see thumbs up at least? If you guys don't want to speak up, that's okay initially. Yeah. Okay. So today we are doing storytelling with tonality through storytelling. So let's start our training with tonality. ये story से किससे start करूं? स्नेहा बचपन में स्टोरी सुनी थी? स्नेहा बचपन में स्टोरी सुनी थी? Yeah, of course. Does stories fascinate you? कि हाँ स्टोरी सुननी है. Yeah. वो भी भूत की. हाँ? Okay, so since we are running out of time, I'll quickly tell you this story. एक जंगल था, उस जंगल में था एक चूहा.
जो अपने आप को बड़ा छोटा समझता था कि यार आई एम द टाइनीएस्ट एनिमल इन दिस जंगल, हाँ देखो तो हाथी है, घोड़ा है, शेर है, भालू है, एंड सबके आगे मैं इतना छोटा, मेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मुझे हमेशा डर डर के रहना पड़ता है। एंड इसी डर में जीता था, दुखी रहता था। एक दिन उसने अपने बिल के बाहर, उसके होल के बाहर, उसके घर के बाहर उसने देखा तो एक पिलो कवर पड़ा था, एंड वो सरप्राइजिंगली देख रहा था यार ये क्या चीज है, एंड ये किस में यूज होता होगा। जब उसने काफी देर तक उसको टटोला तो उसको पता चला कि अरे ये तो पिलो कवर है, ये तो ह्यूमंस यूज करते हैं, ये किस काम का। देन ही थॉट कि चलो इसका ना अपने भूत बनाते हैं। तो उसने उस पिलो कवर पे आंखें ड्रॉ की, मुंह ड्रॉ किया एंड उसके अंदर घुस गया। बोले शाम को जब सारे एनिमल्स घर जाएंगे तो उनको डराया जाए। तो इवनिंग हुई और फिर वो रैबिट आया सबसे पहले उधर। रैबिट आया तो रैबिट ने को उसने शेडो रैबिट को दिखा तो वो डर के भाग गया, भूत 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 करके भाग गया। पीछे पीछे आया एक छोटा सा हिरन, हिरन ने देखा अरे भूत, बोल दिया जंगल का राजा भी आया, शेर, वो भी देख के डर गया, अरे बाप रे इधर तो भूत है। एंड सबने अपना रास्ता चेंज कर दिया एंड मजे से चूहा इम्पोर्टेंस एंड ऑल दैट। एक दिन जंगल में आया तूफान, जैसे ही तूफान आया सारे पेड़ गिर गए एंड एक ही रास्ता बचा था, वो भूतिया चूहे का रास्ता। तो सारे लोगों ने बोला हिम्मत करके जाते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो सबसे पहले एज यूजुअल रैबिट गया तो उधर उसी समय तूफान की हवा आई और चूहे के ऊपर से वो पिलो कवर उड़ गया एंड पता चला कि ये तो जो हमें उल्लू बना रहा था इतने टाइम से। तो क्या हुआ, सबका विश्वास उठ गया एंड उन लोगों ने चूहे को खूब डांट लगा के बोला कि तुमने हमको उल्लू बनाया, निकलो हमारे जंगल से। स्टोरी खत्म। अगर हम किसी को उल्लू बनाते हैं तो लास्ट में हम फंसते, ठीक है। अब एक और स्टोरी। एक बहुत घना जंगल था, उस जंगल में रहते थे खूब सारे एनिमल, शेर, चीता, भालू, हाथी और एक नन्हा मुन्हा प्यारा सा चूहा भी रहता था वहां। वो चूहा खूब चुलबुला था, यहाँ वहां घूमता बट खूब डरता था अंदर ही अंदर। क्यों डरता था कि मैं छोटा हूँ, मेरे ऊपर कोई चढ़ गया, क्या मेरा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है क्या इस जंगल में, ये सोच के हमेशा उदास रहता था। वो उदासी में एक बार उसने देखा कि एक कपड़ा पड़ा था मेरे घर के पास और उस कपड़े का मैं क्या इस्तेमाल कर सकता। जब उसने वो कपड़ा देखा ध्यान से तो पता चला वो तो था पिलो कवर। पिलो कवर देख के वो सोचा इसका क्या करूं अब मैं। उसने रियलाइज किया कि इससे कुछ मजेदार किया जाए। उसने मजे मजे में उस पिलो कवर से बनाया एक भूत और वो भूत उसको अच्छा लगा। उसने बोला ट्रायल रन किया जाए। पहले आया रैबिट एंड रैबिट को उसने खूब भूत बन के डराया। जैसे उसने भूत बन के डराया और रैबिट डरा तो चूहे को आया बड़ा मजा। जब मजा आया तो चूहे ने उसे रिपीट किया एंड सारे जानवर डर गए, ठीक है। आगे की स्टोरी आप सबको पता है, हाँ, आई विल नॉट कंटिन्यू मच। नाउ टेल मी कि डिफरेंस क्या था दोनों स्टोरी। बोलने का तरीका। कौन सी स्टोरी सुनने में मजा आ रहा था? सेकंड वन। सेकंड वन। कितनों को फर्स्ट वाली अच्छी लगी? जिसको वीडियो नहीं ऑन करना, यू गाइस कैन स्टिल रेज हैंड। कितनों को फर्स्ट स्टोरी अच्छी लगी और कितनों को सेकंड? अभी सेकंड कितनों को अच्छी लगी? मैं देख रहा हूँ रेजन का ऑप्शन काउंट होता है। सेकंड स्टोरी कितनों को अच्छी लगी? मानव को अच्छी लगी, आई थिंक किसी और ने भी क्लैप किया था, हाँ, पूर्वी को अच्छी लगी। सो दिस इज द डिफरेंस आई वांट टू टेल यू गाइस, दैट इज देयर इन tonality. The moment you change the tonality, जब भी हम कोई बात करने के पीछे रश में रहते, जल्दी खत्म करते, how I started purposely
कि quickly now we have to finish this story in 2 minutes or 10 minutes. That's how we generally work. चलो चलो ये खत्म करते, चलो चलो जल्दी करते, चलो चलो ये करते, तो सामने वाले को भी सुनने में इतना मजा नहीं आता, इतना सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लेता. As long as you use your tonality, then only people are interested to listen to you. है ना? अब हर रोज की जिंदगी में हम स्टोरीज नहीं बताते, बट विद दिस स्टोरी आई वांट टू टेल यू, चाहे वो बोरिंग सी स्टोरी थी या चाहे वो तुम्हारी नोन स्टोरी थी, 1 मिनट पहले ही स्टोरी सुनी ना आप लोगों ने, स्टिल रेपिटेशन वाज वे बेटर. हम सेम मूवी तुरंत के तुरंत दूसरी बार देखते हैं मूवी हॉल में बैठ के? नहीं देखते. हाँ, पर ये सेकेंड टाइम सुना, रेपिटेशन सुना तो भी अच्छा लगा. क्यों? क्योंकि टोनैलिटी था. क्यों? क्योंकि उसमें फीलिंग्स था. एंड विथ टोनैलिटी a little bit of facial expression changed. I tried not to give any facial expression in the first story, but वो फिर भी inbuilt है, तो थोड़ा बहुत facial expression आ रहा था first time story में. I was trying to have the poker face, but वो मेरे से हुआ नहीं है. But in second story, when it came to bring out all the emotions, तो मेरे को भी मजा आ रहा था स्टोरी बताने, है ना? सेकेंड टाइम रेपिटेशन में जब आप टोनैलिटी लाते हो, जब आप अपना एक्सप्रेस कर सकते हो अपने फीलिंग, तो आपको उस चीज करने में मजा आता है ना? एंड जब कोई चीज करने में हमको मजा आता है तो डेफिनेटली सामने वाले को वो इंटरेस्ट दिखता है एंड सामने वाला भी इंटरेस्ट लेता है. The moment you show your interest, the other person also shows interest. Agree? Makes sense? या? ठीक है. तो अभी ठीक है, ये हुआ टोनैलिटी. होता क्या है, टोनैलिटी का इंपॉर्टेंस क्या होता है, विदाउट गेटिंग इनटू थियोरी. डू यू अग्री दैट टोनैलिटी मैटर्स? यस और नो? एक दो फेसेस हिलते हुए, एक दो थम्स अप दिखे. ओके, ठीक है. सो नाउ हम सबको टोनैलिटी ऑलरेडी आता है एंड बहुत अच्छे से आता है. व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग टू योर मदर, है ना, पूरा इमोशनल अत्याचार हम कर सकते हैं. व्हेन टॉकिंग टू योर सिबलिंग, जब छोटे भाई या बहन को दबाना हो तब पूरा टोनैलिटी आता है. क्यों? क्योंकि आवाज मजे से ऊपर जाता है. जब किसी दोस्त को, यू नो, वेरी क्लोज फ्रेंड को दबाना हो अपने को, चल यही पिक्चर जाना है, तो वो नॉर्मल टेम्पो में नहीं जाते हम, है ना? नॉर्मल टेम्पो में जाते हैं, ए चलना पिक्चर जाना, नहीं. जैसे दादागिरी से ए चलना, तो वो आईब्रो ऊपर होती है, वॉल्यूम में चेंज आता है, कॉन्फिडेंस होता है. बट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल वर्ल्ड, somewhere or the other we lack this thing. It's not that कि हमको आता नहीं, आता तो बहुत अच्छे से है, everybody knows, but it's just that we don't use it there. Now it's the time कि हमें उधर भी यही करना है. ठीक है? I'll again start little bit of PPT for 1 or 2 minutes and then again we will go to the practical things. Yeah? Hey, there we go. So communication क्या है? तो if I want to give you very short glimpse, easy way to understand, the exchange of information is communication. फिर आगे बढ़े तो कम्युनिकेशन के टाइप्स आते हैं. हम लोग कम्युनिकेशन नहीं सीखने बैठे, we will only do tonality. This is just to create a background. तो verbal communication, non-verbal communication and written communication. Now what makes you hear? तो 7% only words. हम जितना भी बोलते हैं, impact words का सिर्फ 7% है, body language का 55% है and tone of voice का है 38%. So today what we are going to focus is only on this portion, that how tonality is going to create miracles for you. How tonality is important, why tonality is important. ठीक, तो tonality होता क्या है? तो tonality is expressing your true feelings.
अपने अपने बड़े किसी को बोले हाँ चलते हैं, हमारा टोन बताता है कि बंदा चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना। कोई बोलता है हाँ चलते हैं, हाँ चलते हैं, चलो चलो चलते हैं, फर्क तुरंत ही पता चलता है सामने वाला बंदा चलेगा कि नहीं चलेगा, हाँ नहीं मैटर कर, है ना। तो हमारा सच्ची दिल की भावना क्या है वो हमारा टोन बता देता है, ठीक है। तो टू चेंज एंड सेम टोनालिटी कई बार हम इंटेंशनली यूज करते हैं, एट टाइम्स वी यूज इट अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली हम कुछ और बोल रहे होते हैं एंड मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ टोनालिटी, है ना। कभी कभी मम्मी को कुछ बोल दिया हमने, अरे नहीं नहीं, मम्मी बोली अरे मेरे साथ तो ऐसे, अरे मेरा मतलब ये नहीं था, आई वॉजंट बीइंग रूड, वो तो मैं काम में था इसलिए ऐसा बोला। होता है सेम थिंग, समटाइम्स वी डोंट इंटेंड टू से समथिंग बट जस्ट बिकॉज हमारा टोन गलत होता है बात करने वाले को, सामने वाला मे फील इंसल्टेड। सो दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ टोनालिटी इज। सेकंड, okay, typically on an average what we can do is we can speak 125 to 50 words in a minute, but human brain जो है ना खूब तेज भागता है ना। वो विराज, सही बात है ना, अभी भी विराज के दिमाग में खूब सारी बातें आ रही है। तो विराज हमारा दिमाग ना 3 to 4 times तेज भागता है, एंड वो कितने वर्ड्स प्रोसेस कर सकता है, मोर देन 400 वर्ड्स। हाँ, दिस इज एज पर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटीज डेटा, मेरा खुद का डेटा नहीं है। हाँ, तो इट कैन प्रोसेस अप टू 400 वर्ड्स। अभी जो बीच का गैप रहा, अगर कोई बहुत तेज भी बोलता है तो 200 वर्ड्स बोलेगा, चलो खींच खींच के, बट बाकी 200 वर्ड्स की कमी तो इधर है, और ये क्या करेगा, भाग जाएगा कहीं और। So, if you really want to engage somebody with changes in your tonality and with this body language or facial thing, you can keep other person's brain right here. उसे जो वो बीच का 200 वर्ड का जो गैप मिलता है ना, वो तुम्हारी टोनालिटी एंड बॉडी लैंग्वेज उसको रोक के रखता है। Try this with your friends or family, एक पोकर फेस बना के ही एंड सेम टेम्पो में बात करते करते, आप बात करते हो, कितने लोग आपकी बात सुनते हैं और कितनी देर तक? I can bet they will not listen to you even for 1 full minute, है ना। तब तक तो उनका दिमाग कहीं और भाग चुका होगा, हाथ में मोबाइल आ चुका होगा, मैसेजेस रीड, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ ना। होता है, that is because maybe, अच्छा फ्रेंड्स में होता है, मेरे को ये बताओ, फ्रेंड्स में कोई एक फ्रेंड ऐसा होता है जो बोलता है तो सब मान जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, और हमने बोला तो कोई माना ही नहीं। क्यों? कभी कभी होता है हम लोग, कोई बंदा या बंदी नहीं होता है अपने ग्रुप में, तो वी मिस दैट पर्सन अ लॉट। क्या वो होता है तो मजा आता है। उसके बोला हुआ जोक अगर आप बोलोगे तो लोग में भी नहीं हंस रहे। क्यों? That is again how you say. That is again using your tonality and your body language with the content. That's what the difference is all about. Now, what I want you to do here is, अभी आप में से कोई मुझे अपनी लाइफ का कोई भी एक्सपीरियंस, अच्छा बुरा, बताएंगे। चाहे कोई अचीवमेंट बताओ, कोई फेलियर बताओ, कोई भाई बहन के साथ मस्ती किया हो, प्रैंक किया हो, वो बता सकते हो। लॉकडाउन में आप कैसे टाइम पास करते हो, वो बता सकते हो। एज लॉन्ग एज आप जो भी इंसिडेंट्स या जो भी एक्सपीरियंस बताओगे, दैट शुड बी एटलीस्ट फॉर 90 सेकेंड्स, 1 minute 30 सेकेंड तक आपको बोलने का है। अच्छा, कोई भी इंसिडेंस क्विक, कौन बताएगा? Vraj? Yes. Yeah, tell me one incident. तो हुआ यूं कि एक बार मैं और मेरी सिस्टर मस्ती कर रहे थे,
तो वो जो बचपन में साइंस में पढ़ रहा था कि हल्दी और वो धोने का पाउडर सब मिक्स करते हैं तो खून जैसा कलर हो जाता है। तो हमने ऐसे लगा, मम्मी को डराया। तो मम्मी पहले भी नहीं बोली, बाद में बोली यार सच्ची में नहीं कर रहा है, लेकिन फिर उसको पता है कि हम तो मस्ती कर रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली 1 मंथ के बाद क्या हुआ कि एक्चुअली में हम स्टील की पाइप से मस्ती कर रहे थे, तो उसको उंगली पे लगी और उंगली आधे से ज्यादा कट गई और बहुत सारा खून निकला। फिर भी मम्मी बोलते नहीं तुम लोग पिछली बार की तरह मस्ती कर रहे हो। बहन रो रही है फिर भी वो मान रही है। फिर थोड़ी देर बाद सच्ची में उसको लगा कि सच में कटा है, फिर उसने माना। ओके राज, नहीं हुआ 1.5 मिनट? बस इतनी ही थी। ठीक है चलो, ओके गुड। और कोई, और कौन बताएगा? पृथ्वी, जो नीचे देखता है ना वो पहले पकड़े जाता है। क्विक पृथ्वी, पृथ्वी अनम्यूट करो, बच्चा पहले अनम्यूट करो। ओके बेसिकली मैम मैं अपने सीए के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में तो बताऊंगा। बेसिकली मैं थोड़ा एडवर्स का पर्सन था, बट मैं ग्रेजुएट जैसे सीए में मैंने एंट्रेंस दिया तो एक टाइप का कॉन्फिडेंस था। मतलब जो मेरे को इतना एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं बेसिकली अगर मैं 9th 10th की भी बात करूँ तो आई वाज लाइक अ फेलियर और द एवरेज स्टूडेंट। बट बेसिकली जो मोमेंटम मुझे मिला, मुझे उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मेरे लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है। ओके सो बेसिकली वी कैन से दैट कि ग्रेजुएट अगर सम पॉइंट ऑफ टाइम हमको कुछ भी डिससेटिस्फेक्शन होता है तो हमें उसे डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। हमें बेसिकली अपने साथ एक्सपीरियंस कैरी करना चाहिए। It hardly matters that at any point of time, if you get any failure, we have to carry the experience with our momentum so that you can get a success in your life. That I want to do. Okay, good. ठीक है, अभी ये दो स्टोरीज से, थैंक यू सो मच पृथ्वी। अभी ये दो स्टोरीज से हमको क्या पता है, स्टार्टिंग फ्रॉम व्रज स्टोरीज फर्स्ट। हाँ, व्रज जब वो अपनी स्टोरी बताने लगा, कितनों ने टोनालिटी नोट किया इसमें। हाँ, जब मोमेंट ही सेड कि जब हम दोनों ने फर्स्ट टाइम किया एंड मम्मी को लगा कि सही में कट गया, तो तब उसका फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोनालिटी देखा, उसको ऐसा लगा। बट वी वर एट बेटरमेंट के हमने उसको उल्लू बना दिया। एंड द मोमेंट ही वेंट टू द सेकेंड टाइम के दूसरी बार सच में लगा, तो मम्मी, यार मम्मी तो समझ ही नहीं रही थी। ये फीलिंग था उसके टोनालिटी में। चेंजेस दिख रहा था आप लोगों को कि नहीं? वो फीलिंग आ रहा था। अच्छा, कितने लोग इस इंसिडेंस को विजुअलाइज कर पा रहे थे थोड़ा बहुत? है कि इधर मम्मी थी, इधर उसकी बहन है, रो रही है, विजुअलाइज कर पा रहे थे? यस और नो? कुछ लोग विजुअलाइज कर पा रहे थे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ टोनालिटी, है ना? बट यही चीज, ठीक है, अब यही चीज हम अगर व्रज को बोले कि व्रज देखो अकाउंटिंग के बारे में बात करना है, बैलेंस शीट के बारे में कुछ बात करना, तो व्रज टोनालिटी कैसे लाएगा? या व्रज वो इम्पोर्टेंस या वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? यू नो, बिकॉज वो जो स्टोरी बता रहा था व्रज, हाँ, उसका ओनरशिप किसका था? व्रज का है। एक्सपीरियंस किसको हुआ था? चाहे इसमें मैं नमक डालूं, चाहे मैं मिर्ची डालूं, किसी को कुछ पता होगा नहीं। हाँ, कितना उसमें मम्मा ने फिर बाद में हमारी कुटाई करी, वो किसी को नहीं पता। तो क्या होता है, what happens when we know something, when we have the ownership of the content, when we have gone through something, so tonality comes within, your body language comes within. But things which we are not really very confident of, yeah, we are not sure of, वहां पे ना हमारा पिच, हमारा टेम्पो हो जाता है फ्लैट। It goes either flat or it dips, दो ही चीज होती है।
वो वॉल्यूम अपने आप नीचे जाना शुरू कर देता है। वो वॉल्यूम बताता है मेरे को ना डर लग रहा है, मेरी पोल खुल जाए, मेरे को ना बहुत प्रॉब्लम में फंसने वाला, मेरे को ना कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना। सो दैट टोन टेल्स यू अबाउट इट। पता चल जाता है कभी कोई बहुत डर रहा होता है तो वो सारी चीज कौन बताता है? टोनैलिटी। एज लॉन्ग एज हमारा ओनरशिप है कंटेंट पे, एज लॉन्ग एज हमारा कॉन्फिडेंस है उस चीज पे, तो टोनैलिटी गोज वे अबाउट। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल, that when we go into professional world we need to carry the same confidence, one, and second is enjoyment, your liking, your interest. As long as these two things will be there, your tonality will work miracles. अपने आप को tonality आएगा। Coming to Prithvi's example, when he started, okay, जब उसने अपने बीच में फेलियर बोला, जब उसने लास्ट में अपना सक्सेस बोला कि फाइनली आई सक्सीडेड, क्या उन दोनों में कोई फर्क था? इतना मेजर नहीं था। क्यों नहीं था मेजर? आई विल टेल यू। थोड़ा टोनैलिटी में फर्क था। आज कोई अगर सिर्फ फेल आता है तो क्या होता कि ओ आई फेल्ड, यानी वो उसके आंखों में, वो उसके टोनैलिटी में फर्क दिखता। बट व्हेन ही हैड मेड अप हिज फेलियर, व्हेन ही एक्चुअली मेड सक्सेस फ्रॉम फेलियर, तो वो अपना फेलियर भी खुशी से बता रहा था। सो व्हाट, आई फेल्ड बट देन आई अगेन मेड इट अप। तो जब ये करते हैं हम, व्हेन वी मेक अप, तो वो फेलियर का जो वो डिप वाला आना चाहिए था ना टोनैलिटी, वो आता नहीं। वो टोनैलिटी नहीं आता। व्हाई? बिकॉज वी अगेन मेड इट। क्योंकि वो कॉन्फिडेंस है, वो लर्निंग है, वो मेरे लिए एक्सपीरियंस है, वो मेरे लिए फेलियर नहीं था। दैट्स व्हाट हिज टोनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस वाज टेलिंग अस। ठीक है, तो ये तो हुई हमारे पास जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उसके बारे में बात। नाउ विल मूव ऑन एंड सी व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू के you only know your story, nobody else knows, so you own the content and confidence comes from within. There is nothing right or wrong in this scenario. जब आप फ्रेंड से कॉन्फिडेंसली बात करते हैं, क्योंकि there is nothing wrong or right, but in professional world क्या होता है, एक fear of being wrong is there, and maybe at times there is lack of interest as well. That's the reason tonality doesn't come. अभी मुझे आप लोग बताओगे, हाँ, इन 1 2 4 कैरेक्टर्स के टोनैलिटी कैसा होता है? ठीक है, एक एक करके एनीबडी कैन पिक। जो भी फर्स्ट पिक करता है तो वो अपने आप बता सकता है कि ही और शी कैन चूज फ्रॉम द लिस्ट। क्विक कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन का टोनैलिटी कैसा होता है, एक बैंकर का टोनैलिटी कैसा होता है, एक डॉक्टर का टोनैलिटी कैसा होता है, एंड एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का टोनैलिटी कैसा होता है। Quick. I don't want to pinpoint anyone के तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो. We are grown ups. क्या अभी भी बच्चे ही हैं हम? Sheetal? Sheetal will say something about this now. आप लोग ने नोट कर लिया तो मैं वीडियो शेयरिंग बंद करती हूँ सो दैट आई कैन सी एवरीवन, जितने भी लोग हैं मेरे को नाम दिखेंगे। स्टैंड अप कॉमेडियन, डॉक्टर, बैंकर एंड कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। क्विक शीतल। ये शीतल भाग गई वीडियो बंद करके।
इधर चैट में नहीं लिखना है। कोई है पृथ्वी एंड शीतल, मेरे को चैट में नहीं लिखना है। आई वांट टू नो द टोनालिटी when you use it. I want you to speak up. That is the reason I didn't ask for 50 students. I had put it a limited seat, limited edition का ये workshop था. Quick, Sheetal, I want to listen to you. Hello, ma'am. Yeah. Am I audible? Yes, you are audible. Yes, you are audible. The tonality of a banker is quite formal and related to what are the procedures and what are the aspects going on present. He's facts on facts. He's quite formal in a common pace. There's no ups and downs. Okay. Okay. So formal होता है, कभी कभी वो थोड़ा बहुत कहना ही okay, चलो अभी I will not add anything. Okay, so as per Sheetal, banker is more on tonality is more on formal. Okay, who else will tell me anything about banker? Dilip? Yes, कभी ma'am. बैंक वाले से बात की है? Yes, मैम, बैंक ऑडिट किया हुआ है तो हाँ मैम, am I audible? हाँ, you are audible. मैम एक्चुअली जब बैंक में जाते हैं ना तो हमेशा उनका मतलब जो भी मैनेजर वगैरह जो भी होंगे या जो भी डिप्यूटी मैनेजर है उनसे अपने जैसे भी कोरिलेट करेंगे तो वो अपन को हेल्पिंग टोन में हमेशा बात करेंगे, रिक्वेस्टिंग टोन में बात करेंगे। और तो क्या है, यही होता है हमेशा। तो हेल्पिंग, रिक्वेस्टिंग एंड फॉर्मल टोन, ठीक? यस मैम। Okay, who else will tell me about either on comedian, stand-up comedian, then who else is left? Doctor, और चौथा कौन था? कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। यानी कितने लोग को याद रहता है मेरे को वो देखने का है। राहुल, tell me. हेलो मैम। हेलो। Yes, राहुल। हाँ मैम। राहुल, आज शेव नहीं कर रहे हो? कैमरा क्यों बंद है? मैम कैमरा स्टार्ट नहीं हो रहा है एक्चुअली, मैं पता नहीं क्यों। मैंने इनिशियल सेटिंग्स ऐसे ही रखे थे कि वीडियो ना दिख सकता है, तो वही शायद इसलिए। ठीक है, चलो बताओ। हाँ, सो मोस्टली कॉमेडियंस का टोनालिटी एंड लाइव इवेंट को लाइव रखने के लिए वो रहता है कि वो जो ऑडियंस है उसको एंथुसियास्टिक रखें। उनका जैसे अगर वो सैड स्टोरी रख रहे हैं तो सैड के बाद जैसे उनको पिच लानी है वो अपनी आवाज वॉल्यूम हाई कर देंगे, वैसे वो अपना वॉइस को मैनिपुलेट करते रहते हैं कि थोड़ा कभी स्लो हो जाएंगे, कभी फास्ट हो जाएंगे, पंच के टाइम पे जोर से बोलेंगे, बाकी वापस स्लो हो जाएंगे, उस तरह से। वेरी गुड, ठीक है। तो हमने कवर किया बैंकर एंड कॉमेडियन। अभी मेरे को बताओ डॉक्टर एंड जो भी लास्ट बाकी था वो। Doctors like family, as we are speaking at home with others. Okay, so they talk to us more friendly and they can relate to with empathy, I would say. Yes. Yeah. Okay, so doctors are showing empathy and थोड़ा care दिखा के बात करते हैं, ठीक है? वो टोनालिटी होता है। बाकी लास्ट वाला कौन बताएगा? मेरा फेवरेट है वो वाला। मैम कैन आई से अगेन? या सो सेल्समैन ट्राइज के ना फास्ट, जितना फास्ट हो सके वो जितने कम टाइम में हो सके उतना कम। एक मिनट, सॉरी राहुल, सॉरी, यहाँ पे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, सेल्स पर्सन नहीं डाला मैंने। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव यानी कॉल पर्सन जो आपको परेशान करते हैं वही ना? कॉल सेंटर वाला गिन लो, चलो। हाँ, यानी वो लोग मोस्टली ट्राई करते हैं कि उनको मोस्टली पीपल ट्राई टू अवॉइड देम, तो जितना कम टाइम में आपका अटेंशन ले सके वो उस टाइम में स्टार्टिंग में फास्ट रहता है। उसके बाद जैसे आप उनको अटेंशन देते हो कि हाँ मेरे को बताओ क्या स्कीम है, उसके बाद स्लो होकर अपना पूरा समझाने पे आ जाते हैं। ओके, अगर राहुल मैं ये बोलूं कि आप वोडाफोन कस्टमर केयर में फोन करते हो तब क्या मैम? सॉरी, वोडाफोन कस्टमर केयर में अगर कॉल करते तो वो कैसा टोनालिटी यूज करते हैं? मोस्टली ग्रीट करेंगे स्टार्टिंग में कि हेलो सर, वेलकम टू वोडाफोन केयर। नहीं, क्या बोलते हैं वो नहीं पूछा मैंने, उनका टोनालिटी कैसा होता है?
एज पर माय ऑब्जर्वेशन मेरे को तो वो यानी वो स्टार्टिंग में उनके जो रटे वटे लाइन होते हैं वही फास्ट सुनाने का ट्राई करते हैं और उसके बाद इश्यूज सुनते हैं धीरे से। ओके दिलीप, हाँ आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैम एक्चुअली उसमें वो टोनालिटी इन द सेंस मतलब जो बोल रहे हैं उनका कंटेंट मैटर नहीं करता है, वो किस वे से बोल रहे हैं, मतलब किस तरीके से बात कर रहे हैं अपन से मैटर करता है। तो उसमें वो हमेशा मतलब पहले अपन को हेल्पिंग टोन में ही बात करेंगे क्योंकि हम उनके कस्टमर हैं, तो अपन से रिक्वेस्टिंग और हेल्पिंग टोन में बात करेंगे। उसके बाद में अपनी क्या दुविधा है, मतलब क्या अपने प्रॉब्लम में चल रहे हैं, तो वो सुनेंगे। उसके बाद में अपन को कुछ भी वो एक्सप्रेस करेंगे। और मतलब मोस्टली वो हमेशा यही करेंगे कि भाई हम आपको हेल्प कर रहे हैं, चाहे नहीं कर रहे हैं वो दैट्स डजंट मैटर, मतलब जो टोन होगा वो हेल्पिंग वाला होगा। ठीक है। तो जो मेरे को अभी यहाँ से मिला चारों का, तो डॉक्टर इज मोर ऑन पोलाइट एंड केयरिंग वाला टोनालिटी होता है, ठीक है। बैंकर अगेन केयरिंग एंड फॉर्मल वाला मेरे को आंसर मिला। वो कस्टमर केयर वाला हेल्पिंग एंड वो रट्टू तोता वाला मिला मेरे को, ठीक। एंड लास्ट कौन सा बचा? हाजी मोहम्मद बताएगा। और कौन सा मैंने बोला था? स्टैंड अप कॉमेडियन। स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत सारा टोनालिटी यूज करता है, हाई पिच जाता है, लो जाता है, उसका टेम्पो चेंज होता है, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ कि मैंने क्या सोचा था। इट्स नॉट दैट वॉट एवर आई थॉट इज करेक्ट, ठीक है। टोनालिटी इज समथिंग रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स। अभी आपने क्या पढ़ा वो भी सही है, मैंने जो पढ़ा वो भी सही, एवरीबडी इज करेक्ट इन दैट सेम। तो मैं जो स्टैंड अप कॉमेडियन को रेट करूंगी टोनालिटी पे, दैट इज हाईएस्ट। व्हाई? बिकॉज एज समबडी ऑलरेडी टोल्ड मी कि वो अचानक से लो जाके ऐसे भम जब पंच आएगा तो, हाँ। सो दैट इज द वे यू कैच अट्रैक्शन। शाहरुख खान की मोहब्बतें पिक्चर देखी है सबने, हैं? आधे से ज्यादा चीजें विस्पर करता है एंड फिर बोलता है, तो भी लोग सब ध्यान से सुनते। ऐसा कोई डायलॉग नहीं होता है जो हमने ना सुना, जो हमने ना सुना हो चाहे उसने विस्पर किया हो। दैट इज शाहरुख खान टोनालिटी स्टाइल कि आधे टाइम वो विस्पर करता है उसके डायलॉग, है बोलता ही नहीं है। स्टिल वी लाइक इट, स्टिल वी लव एज एन एक्टर, या। सो सेम थिंग कम्स विद स्टैंड अप कॉमेडियन। दे use tonality to the highest and that is the reason they rock the floor. उनका बॉडी लैंग्वेज लिमिटेड होता है। कई सारे तो कॉमेडियंस ऐसे हैं जिनका पोकर फेस होता है, खुद के जोक पे खुद हंसते भी नहीं है। स्टिल जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टोनालिटी, वही सेम जोक हम क्रैक करें तो इतना लोग नहीं हंसेंगे कंपैरेटिवली टू अ स्टैंड अप कॉमेडियन। पीपल मे लाफ एट द सेम जोक व्हेन वी क्रैक, बट द laughter is lesser comparing to the stand-up comedian. Going back to doctors, they are more polite, they are more calm. Yes, agreed. But वो ऐसा tonality use करते हैं जिसपे हमको ट्रस्ट आता है, जिसपे हमको भरोसा आता है। कई डॉक्टर्स पे नहीं आ पाता है हमको, है वो कितना भी वेल नोन डॉक्टर होए, अपने बोलते ये पैसे खाने वाला है, नया खोटे खोटा 1000 रुपए की फीस दे डाली इधर। तो डॉक्टर का टोनालिटी हैज टू बी सच वेयर इन यू कैन बिल्ड द ट्रस्ट, है ना, तो ही वो बिकता है, तो ही हम उसकी दवाई भी लेते हैं। नहीं तो दवाई खरीदने के बाद भी खाने से पहले सोचते हैं यार खाएं कि ना। So doctor's tonality has to be polite, has to be friendly, has to be careful, at the same time has to be such that is trustworthy. Otherwise it doesn't work. Coming to third character, stand up comedian हो गया, doctor हो गया, banker. Again banker always, जैसे किसी ने मुझे बोला कि वो facts की बात करता है, वो figures की बात करता है. Why? Because they again want to build trust. They try to be little friendly as well. Why? Because in order to build up a relationship, पैसा ऐसी चीज होती है ना, तो उसमें ट्रस्ट नहीं होगा तो मेरे साथ इन्वेस्टमेंट होगा, तो मेरे साथ बैंक अकाउंट खोलोगे ना तो मेरी कोई चार्जेस वाली बात सुनोगे, है ना. Again they try to be little informal as well at times, bankers, in order to build trust. But wherein doctor trust जीतने के लिए वो कभी friendly या वो informal, friendly होगा पर informal नहीं होगा कभी भी.
So with profession, your tonality and importance changes. But again, everybody uses the same thing. जो प्रोफेशन होता है वो टोनालिटी घर पे भी आने लगता है स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि वो इनबिल्ट हो जाता है ना, घुटाई जाए, है ना, गुजराती बोलते हैं घुटाई जाए, राइट. कमिंग बैक टू द लास्ट एंड माय फेवरेट, क्योंकि मैं कभी ये काम नहीं कर सकती, अगर मैं वो टिपिकल वोडाफोन कस्टमर एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो व्हाट आई फील इज नो टोनालिटी. जो वो शुरू में बोलता है कि गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है वोडाफोन कस्टमर केयर में, से लास्ट तक शुभ रात्रि या थैंक यू फॉर कॉलिंग इन वोडाफोन कस्टमर केयर, टेम्पो एंड देयर टोनालिटी एंड देयर पिच रिमेन्स द सेम. कभी नहीं पता चलता उसकी टोनालिटी से वो गुस्सा है, क्योंकि लोग सामने गुस्सा करते हैं, वो लोग कभी बेचारे गुस्सा कर नहीं सकते, है ना. वो खुश हैं कोई बात से तो भी they can never show their खुशी. They are happy that you spoke to them so well. Voice clear नहीं है? Clear है? Yes. It's clear, ma'am. हाँ, तो maybe Anjali you need to check your connectivity in that case. Yeah. So customer care executive are more like IVR है. आपका दिन शुभ रहे and welcome to Vodafone. बीच में इतना गुस्सा आता है, बेवजूल का तुम जिग जिग कर रहे हो, नेटफ्लिक्स पे मूवी देखा है ना, बोलते मेरा डेटा उड़ गया, मेरा डेटा उड़ गया. समझ नहीं आ रही, नेटफ्लिक्स यूज करते हो, HD वाला पिक्चर देखा तो डेटा तो उड़ेगा ना, उसमें क्या कस्टमर केयर में फोन करके जिग जिग कर रहे हो. कभी कभी ऐसा भी फीलिंग उनको आता होगा कि नहीं आता होगा, है करा होगा ना तुम लोगों ने भी फोन ऐसा कि मेरा डेटा 2 GB का था, उड़ गया है, मेरा बैलेंस क्या है. खुद पिक्चर देखते हो और खुद ही हमको फोन करके वापस पूछते हो. मैम उनको पेशेंस रखना पड़ता है हमेशा, मतलब एक्चुअली उनको गुस्सा आता है, नहीं गुस्सा आता है तो but वो उनका मतलब ऐसा नहीं कि बोल सकते हैं, मतलब ऐसे डांट के नहीं बोल सकते भाई तूने HD यूज किया तो वो होने वाला, मतलब वो मतलब हेल्पिंग टोन में बात करनी. यस मैम. बट दैट टेम्पो, वही बोल रही हूँ कि दैट टोनालिटी आप नोटिस करना, यू नो आई हैव ट्रेन्ड देम सो आई नो, कि आप नोटिस करना कि दे हैव टू कीप द सेम टेम्पो. दे कैन नॉट शो एंगर, दे कैन नॉट शो हैप्पीनेस, दे कैन नॉट शो एनी फीलिंग. उनका इमोशन मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, वो जैसे है मतलब जो रेडिकुलस है वही वैसे ही रहने वाले हैं. वैसा ही, वही बोल रही हूँ ना कि गुड मॉर्निंग से लेके दिन शुभ रहे तब तक सेम रहता है. सही है ना. सो वेरिएशन नहीं आता तो आपको पता नहीं चलता वो खुश है दुखी है. अभी बॉस ने बजाई है कि तूने वो कस्टमर को ऐसा क्यों बोला, कि मैं मेरे सीनियर से पूछ के बता दूं, भाई मुझे भी नहीं पता था, है. अगर बॉस ने ऐसा बोला है तो बॉस का गुस्सा भी वो कभी दिखा नहीं सकता है. सैड है, खुद उसकी भी पर्सनल जिंदगी है भाई. बाजू में गर्लफ्रेंड ब्रेकअप कर दी एंड फिर भी आज मैं काम पे आया, तो वो दिखता नहीं है कभी भी उनकी टोनालिटी में. नाउ डोंट टेल मी दैट फेशियल एक्सप्रेशन ओनली कैन शो इमोशंस. गर्लफ्रेंड अगर फोन पे स्माइल करती है, इट इज देम टू स्माइल ऑन द फोन, ठीक है, तो आपको क्या लगता है, नहीं पता चलता. अगर वो स्माइल करना चाहे तो कर सकते हैं ना. यू ट्राई एंड अप्रिशिएट देम समटाइम्स, यू नो, व्हेन दे आस्क यू कि हाँ आपका क्या, मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया, जो भी उनका टिपिकल वर्डिंग है, मुझे कभी उनका पिच याद नहीं रहता है. बट जब तुम वो ये बोलते हैं तो और तुम उनकी तारीफ कर दो, तो जाके उनकी टोनालिटी तुमको सच्ची वाली पता चलेगी कि नो इट वाज माय ड्यूटी. तब वो हंसते हैं, आपको पता चलता है. अदरवाइज दे आर एज गुड एज रोबो. So that is what, and you don't enjoy talking to them. Do you enjoy talking? Who is there who actually enjoys calling Vodafone customer care या Idea customer care या Airtel या कोई इंश्योरेंस कंपनी का या कोई बैंक का कस्टमर केयर? कौन एंजॉय करता है? मेरे को लगता है राहुल को बहुत मजा आता है ना राहुल? नो मैम, ऐसा कुछ नहीं है. So do you like it or you don't like it? Tell me. टाइम पास करना तो हाँ कभी कभी मजा आ जाता है. यानी उन बेचारों की लेने के लिए नहीं, इन नॉर्मल सेंस. ये तुम लोगों की नॉर्मल सेंस हाँ, यानी दे आर हेल्पफुल. बहुत केसेस में दे आर वेरी हेल्पफुल. तो मैं लास्ट में मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको कि आपने हेल्पफुल रहे, पर और ठीक है.
तब टोनालिटी आता है, तब उनका सी एज आई सेड टोनालिटी इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस, ब्रिंगिंग आउट योर इमोशंस, तब जाके उनके इमोशंस बेचारे थोड़े बाहर ला पाते हैं. Yeah, so moral of the story, I don't want to say anything bad or good, it's their job and they are doing fantastic. I will drastically fail in their job. मेरे को निकाल देंगे शायद नौकरी से अगर मैं उस जॉब के लिए गई तो, because I cannot do that. So heads off to them. I actually respect them for that. But here what I want to tell you is, if we keep the same tonality, वो flat tempo पे जाते हैं तो people don't like to listen to us. Whether it's our boss, whether it's girlfriend हो या मम्मा हो या घर का कोई भी हो या दोस्त हो, तो सेम वे ऑफिस वाला और क्लाइंट क्यों सुनेगा हमारी, है ना? तो इवन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस शीट नंबर्स ना, वो टोनालिटी लाना है, वो बिहाइंड द सीन वाली स्टोरी लानी है, सो दैट पीपल लिसन टू यू एंड रिमेम्बर. एक होता है किसी ने सुना बट याद नहीं रखा, तो भी क्या, what is the point? No point ना, इतना एनर्जी टाइम वेस्ट किया, जबरन उसका अटेंशन रखा when we were talking to the person, but then at the end कुछ वो घर ही नहीं लेके गया, हमने जो उससे बात की, there were no takeaways, so again there was no communication because you exchanged information but there were no takeaways, so there was no communication. Make sense? Make sense to people Yes, who ma'am. have kept their videos off also, क्योंकि मेरे को आपका शक्ल नहीं दिखता, मेरे को समझ नहीं आता. जिनकी दो चार लोगों ने वीडियो ऑन रखा है, मुझे एटलीस्ट समझ आता है कि हाँ वो लोग सुन रहे हैं, समझ आ रहा है या नहीं. Yeah, okay, so moving ahead quickly, I'll go back to PPTs. Why I'm time and again opening PPTs is because आप लोग एक बार रीड करते हो उससे बहुत फर्क पड़ता है. ठीक, अभी ये वाला एक्सरसाइज क्या आपने कभी किया है? अगर किया है तो आई विल नॉट टेक वेरी लॉन्ग ऑन दिस. सेंटेंस में एंड मुझे वो सेंटेंस 2 बार बोलोगे, सेम सेंटेंस, और मतलब चेंज करके बताओगे. सेम सेंटेंस का मतलब चेंज होगा अगर आप टोनालिटी या स्ट्रेस, कोई पर्टिकुलर, चलो एक हिंट देती हूँ, कोई वर्ड पे आप स्ट्रेस डालो तो मतलब चेंज कर सकते हो आप पूरे सेंटेंस का. टेल मी हु वांट्स टू ट्राई देयर हैंड्स. कोई भी एक सेंटेंस यू कैन पिक एंड चूज. क्विक. हर बार मुझे पुश करना पड़े तो क्या मजा आएगा? Ma'am, I will try first. Yes, tell me. Yeah, I will go with you. And sorry, sure, I will go with you. And yeah, I will go with you. Sorry Rahul, sorry Rahul, you cannot add any word. आपने जैसे बोला ना sure, Yeah. तो you cannot add any new word. इतने ही words use करने हैं. Okay. और surety दिखानी है. चलो, I'm giving you 10 seconds to think on के कौन से word पे, मैं hint भी दे रही हूँ, कौन से word पे emphasis डालो कि वो surety दिखे. Ma'am, I'll try. Yeah, Rahul. First, wait. Let Rahul try. Then you Ma'am, guys can. I will do any another word. Yeah, tell me. चलो, हाजी ने बोला ना शायद. Sorry, आपका नाम हाजी ही है ना? हाँ, yes, ma'am. Yeah. So हाजी, tell me. First sentence, I'll go with you. जो first sentence है उसमें वो request कर रहा है, I'll go with you, and emphasis go पे कर रहा हूँ, I'll go with you, वो question answer बन जाता है कि मैं आपके साथ आ सकता हूँ, या फिर दूसरे sentence में I'll go with you मतलब साथ में चल रहा हूँ, इसलिए. Okay. Go पे emphasis करना है, go. Sentence. I will go with you. Yeah. मतलब मैं चलूंगा नहीं. Question mark नहीं बनेगा. Question नहीं बनेगा उससे. Requesting मैम. I'll go with you. मैं आप जैसे requesting कर रहे हैं कि मैं आपके साथ चलूँ. Okay, ठीक. और कौन ट्राई करेगा?
Ma'am, I will go to these more importance to I. तो उससे क्या मतलब बनता है अगर आई पे एम्फेसिस करेंगे तो? Giving surety that I will come with you. When you put emphasis on I will say now, I will go with you. अभी क्या उसका मतलब बनता है? मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ. I will go with you. यानी सिर्फ मैं, nobody else. I will come with you. I will go with you. Ma'am, can I try? क्या? Ma'am, can I try? Yes. I would like to try second one. Tell me. I never said he stole your purse, and I never said he stole your purse. तो अभी एम्फेसिस उसने किस पे डाला है? ही पे. या? अभी ही पे एम्फेसिस डालने का मतलब क्या था पृथ्वी? मतलब इनडायरेक्टली एक डायरेक्शन दे रहे थे कि भले ही डिडंट स्टोल बट आई वाज डायरेक्टिंग हिम कि देयर इज अ लाइक कि क्वेश्चन मार्क, यू शुड एम्फेसिस देयर, यू शुड एटलीस्ट सी. मतलब नहीं, जब आप ही पे एम्फेसिस करते हो तो क्या बनता है पता है? आई नेवर सेड ही स्टोल योर मनी. यानी मैंने कभी ये नहीं बोला कि इसने तेरे पैसे चोरी किए, है ना? मैंने बोला पैसे चोरी हुए बट इसने चोरी की ऐसा मैंने कभी नहीं बोला. या राहुल क्या हुआ? हेलो. यस मैम. आई विल ट्राई थर्ड वन. यस, आई विल ट्राई थर्ड वन. हाँ बोल, कयू सेंटेंस तू ट्राई करिस, बोल. Are you having trouble in paying? And second tone, are you having trouble in paying? तो दोनों का मतलब कहाँ पे चेंज किया तुमने? पहला तो तुमने सेम टोनालिटी. I am in first one. I am asking him in a soft way if he is having trouble in paying. But in second one, I am emphasizing. I am toning him. Okay, so you should pay. Yes. पेमेंट करने में कोई तकलीफ है क्या? हाँ. Yes, that. है ना? अगर ठीक है, चलो, आई एम गिविंग यू अनदर ऑप्शन. अगर इंग्लिश में हमको लग रहा है कि शायद हम टोन पे एम्फेसिस नहीं कर पा रहे हैं, हम कंप्लीटली ओके. ठीक है ना? क्योंकि डे टू डे जब आप जाओगे तो इतना इंग्लिश नहीं बोलोगे जब तक आप गुजरात में रहोगे तो. ठीक. तो आई एम गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी, यू कैन डू दिस टोनालिटी विथ हिंदी और गुजराती. चलो, अभी कोई नया बंदा ट्राई करेगा. कौन ट्राई करेगा? मैम, कैन आई सजेस्ट? मानव. क्या? कौन बोला कुछ? मैम, कैन आई सजेस्ट वन? टेल मी. केवल. टेल मी. कैन आई सजेस्ट वन पर्सन? केवल. केवल बोलो, अपने दोस्त को बोलो. केवल है वो चैट में? केवल टेल मी. चलो, अभी आपकी पब्लिक डिमांड में आपको बुलाया जाता है केवल जी. आप कौन सा सेंटेंस ट्राई करने चाहेंगे केवल जी? यस. एक तो यार वीडियो नहीं ऑन कर, को बॉडी लैंग्वेज तुम्हारा शक्ल दिखेगा नहीं तो कहाँ मजा आएगा? या केवल जी. गुड. Ma'am, my net is unstable, but still I will try. That third one, that are you having trouble in paying? And the second one is that are you having trouble in paying? क्या डिफरेंस है दोनों में? मतलब पहले में मैं पूछ रहा हूँ जनरली कि तुमको पे करने में कोई दिक्कत है, और दूसरे में मैं ये पूछ रहा हूँ, एम्फसाइज कर रहा हूँ कि तेरे को कुछ भी प्रॉब्लम हो कि ना हो, तेरे को पे करना पड़े, ऐसा मेरा टोन है. ठीक है. मतलब मेरे को जो तेरा रीजन है वो नहीं जानना है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा टोन में कह रहा हूँ. ठीक है. ओके. ठीक है. अभी अंजलि, ठीक है, अब मैं है ना एक ही सेंटेंस सिलेक्ट करूँ ना, देयर इज नो चॉइस. ठीक. एंड मैं एक करके कोई भी दूंगी. सेकंड सेंटेंस लेते हैं बीच वाला. एंड जैसे अंजलि को मैं बोलूंगी अंजलि स्टार्ट, तो अंजलि विल एम्फेसाइज ऑन आई फर्स्ट वर्ड.
उसके बाद अगर मैंने नाम लिया हर्षा, तो हर्षा विल एम्फेसिस ऑन नेवर, ठीक है। एंड हम देखेंगे कि सेंटेंस का मतलब कैसे चेंज हो जाता है, ठीक। अंजलि, लेट्स स्टार्ट। Ma'am, in second sentence you were talking about. हाँ, सेकंड सेंटेंस ही ले रही हूँ और सबको उसी पे Okay. I never said to stole your money. ये तो डायरेक्टली सेंटेंस हो गया कि मैंने नहीं कहा उसको कि वो आपकी मनी स्टोल करे. एंड द सेकंड वन इज आई नेवर सेड ही स्टोल योर मनी. ठीक है, नहीं, अपने एक ही अल्फाबेट पे पहले एक ही वर्ड पे रुकते हैं, आई. सो व्हेन वी पुट एम्फेसिस ऑन आई नेवर सेड, भाई मैंने कभी नहीं बोला था ऐसा, है ना. आई नेवर सेड, आई पर में पॉज लेके अगर हम बोलते हैं तो आई नेवर सेड ही स्टोल योर मनी, ठीक है ना. So when we put emphasis and put a pause after I, तो it says कि मैंने ऐसा कभी नहीं बोला था भाई, तू मेरा नाम मत ले. That's what we want to say. ठीक है, अभी सेकंड कौन ट्राई करेगा? क्विक, नेवर पे एम्फेसिस करना है हमको. Ma'am, tell me. I never said he stole your money. Like, just when I say like it is like मैंने कभी भी नहीं बोला कि he stole your money, even if he has stolen, but मैंने ये नहीं बोला है कि that he stole your money. I never said. हाँ, I never said is मैं पहले था, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला था. अगर I पे मैंने बाकी सब ने बोला था पर मैंने नहीं बोला था. When we put emphasis on I, when we put emphasis on never, तो मैंने ऐसा कभी नहीं बोला था. You know, मैंने कुछ भी बोला होगा, मैंने और सब बोला था बट ये नहीं बोला था, है ना. दैट इज द डिफरेंस कि मैंने और बहुत कुछ बोला था बट ये नहीं बोला था मैंने कभी नहीं, है ना. अभी कौन बोलेगा कि सेड? क्विक, फिर नहीं तो बहुत सारी और चीजें हमको करनी है. Ma'am, myself. क्या हर्षा? I never said he stolen your money. तो इस पे अगर मैं सेड पे डालती हूँ एम्फेसिस तो क्या होता है बताओ? क्विक. मैंने कहा तो नहीं पर किसी और तरह से जताया था. मैंने कहा नहीं बट मैंने लिखा हो सकता है, मैंने ईमेल किया हो सकता है, मैंने ऐसा कभी कहा नहीं है. मैंने एक्सप्रेशन से जताया है, मतलब इशारों से, फिजिकली, बट हाँ didn't say it. बट मुंह से नहीं बोला है मैंने, है ना. मैंने आंखों से देखो इशारा किया था, इसी ने करा है ये मैंने ऐसा कभी बाय वर्ड ऑफ माउथ नहीं बोला है. ठीक है. ही स्टोल, अभी मैं थोड़ा सा भगा रही हूँ, सबको चांस नहीं दे रही हूँ क्योंकि बहुत स्लो मोशन में नहीं तो जाएगा. अगर ही पे एम्फेसिस करते हैं, आई नेवर सेड ही स्टोल, क्योंकि ये हमारा रेपुटेशन है. ही मतलब मैंने कभी ये नहीं बोला कि इसने ही चोरी की थी तुम्हारे पैसे. एंड उसके बाद वाला अभी आप लोग बताओगे. आई नेवर सेड ही स्टोल योर मनी. अगर मैं स्टोल पे एम्फेसिस करती हूँ तो क्या मतलब बनता है सेंटेंस का? मैंने ऐसा नहीं, चुराया नहीं, ले लिया होगा, लोन लिया होगा, कुछ भी किया, बट चुराए है ये वर्ड यूज नहीं किया है. नहीं थे, पड़े थे इसलिए उठा लिए, चुराए नहीं थे उसने. मैंने ऐसा नहीं बोला चुराए थे, पैसे लिए बट चुराए नहीं थे. ठीक है. फिर योर मनी, यानी तेरे पैसे की बात नहीं चल रही थी भाई साहब. पैसे चुराए बट अंजलि के नहीं, राहुल के चुराए थे. मैंने कभी नहीं बोला अंजलि के पैसे चुराए थे, समझे. एंड लास्ट अगर मनी पे एम्फेसिस करते तो उसने चोरी की, बट मैंने ये नहीं बोला कि पैसों की चोरी की. तब चोरी किया था, मोबाइल चोरी किया था, हेडफोन चोरी किया था, बट आई नेवर सेड ही स्टोल्ड योर मनी. ठीक है. अभी एक ही सेंटेंस का चेंज होता है. नाउ कमिंग बैक टू अवर रियल लाइफ. ये तो सेंटेंस था, मैं आपको बताना चाह रही थी इसलिए मैं जबरन मनी नेवर. जब हम नॉर्मल बात करते तो क्या मम्मी और टीचर के अलावा है इतना एम्फेसिस कोई करता है? मम्मी करती है कई बार. मैंने कीधु तूने देखो बोला था ना. तो मम्मी या तो टीचर, उसके अलावा हम
इतना लेंथ पे स्ट्रेच कोई नहीं करता है वर्ड. सो व्हेन वी गो टू प्रैक्टिकल वर्ड, व्हेन वी गो टू, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं ज्यादा एम्फेसिस दी थी, बट नाउ व्हेन वी विल गो टू कॉर्पोरेट मैम वर्ल्ड, वी विल गो आवाज टू क्लियर अवर नहीं है. बिजनेस वर्ल्ड. Okay, maybe wait a minute. I'll connect the headphones. Now is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So when we go to corporate world, when we go to practical world, when you go and meet your clients, they do specifically emphasize like your teacher or mama, हाँ, कि भाई मैंने बोला था, I या never, ऐसा emphasize नहीं करते, but they will have simply a normal pause. And when there is pause, you need to read in between the words जब वो pause आता है tonality में, है ना? When you reach to certain level, people don't come and tell you, भाई ऐसा नहीं चलेगा, है ना? बॉस आ तो नहीं चले, ऐसा नहीं बोलेंगे क्लाइंट्स या ऑफिस में बॉस. That time we need to learn that when there is a little bit of pause, we need to listen. We need to understand that person is telling you something else. है ना? Ma'am, I want to say something. Yeah. Ma'am, it is quite funny, but एक पीके मूवी है, वो सभी ने देखी है, और उसमें एक एग्जांपल होता है जो अच्छा मैं दिखाती हूँ वो for fun I have it in my it was the best example जो बहुत डे टू डे लाइफ में उनको रिलेट करते हैं कि अच्छा ऐसा exactly. That's what I wanted to come on. तो यही है कि अभी मैंने क्या किया कि एक ही सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स पे एम्फेसिस किया एंड उसका मतलब बताया. अब जैसे अंजलि जी ने राइटली सेड कि अगर हम सेम वर्ड अलग अलग तरीके से बोले तो क्या होता है. आई विल शो यू दैट नाउ. एक सेकेंड में. अरे एक सेकेंड. हाँ एक सेकेंड. आप लोग को वीडियो दिख रहा है? Yes, ma'am. हाँ. It's audible as well, right? No. Audible is not. अभी सुन रहे? सुन रहे वीडियो में? Yes. Network issue is there. Video is not audible. Yes, ma'am. Video is not audible. अभी क्या दो टोटल खाएगा उसको भी दे दो, बुला लेते. मैम मैसेज देख रहे हैं कि नहीं देख रहा? सॉरी किसी ने कुछ बोला? मैम वीडियो ऑडिबल नहीं है और वीडियो चपक चल रहा है. ओके तो मैं उसको नहीं दिखा रही हूँ. अब लोगों को ये वीडियो याद है? कितनों को याद है? याद है. वो क्या बोलता है? अगर कोई बोलता है अच्छा तो अलग मतलब है. क्या मतलब है? अच्छा बेटा बताता हूँ तेरे है. निकुल अच्छा यानी सही में अच्छा लगा. निक होता है अच्छा है. उसमें एक होता है शॉक. अच्छा हाँ. तो same word can have different meaning. This is where miscommunication
comes into picture. मिसकम्युनिकेशन तभी आता है कि हम एक टाइप का अच्छा बोल रहे हैं और सामने वाला दूसरा अच्छा समझ रहा है ना। कभी हम बहुत बिजी होते हैं, कुछ कर रहे होते, चाहे फ्रेंड के साथ चैट कर रहे होते हैं, एंड कोई तुमको पूछे कैसे हो तुम, हाँ अच्छा हूँ अच्छा हूँ, तो सामने वाले को क्या लगेगा, मे बी ही इज अनहैप्पी, मे बी ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू मी। हाँ, बट तुम्हारा सीन क्या था कि इम्पोर्टेंट चैट चल रहा था, इम्पोर्टेंट ईमेल लिख रहे थे, बाकी तुम खुशी हो, बट सामने वाला तुम्हारे अच्छा, क्योंकि यू डिडंट सेड इट विद दैट स्माइल एंड एंथुसियाज्म, बिकॉज इफ यू आर गुड तो यू ऑलवेज स्माइल एंड से हाँ अच्छा है, but you didn't give that expression and tonality, so the other person might feel that ये अच्छा नहीं था, ये बोलने के लिए बोल रहा है ठीक है अच्छा है, but he is not fine. So that's the difference. Ma'am, same thing happened. Okay word for also. Sorry? Okay word के लिए भी tonality के बहुत इफेक्ट दिखता है जब किसी को पूछा कि कैसी लग रही है, तो when we said okay, लगता है कि उसने कैजुअली ओके बोल दिया, बट अपन बोल देते हैं कि नहीं ठीक है ओके ही है, मतलब वो अपने बोलने के टोन से काफी इफेक्ट पड़ता है कि सामने वाला जनरली ओके बोल रहा है, फुली बोल रहा है, वो भी उसका भी फर्क पड़ता है बहुत। उससे टोन पता चलता है। कई बार कोई बोलते है मैं देखो पिकअप कर लूंगा, मैं तुमको पक्का पिकअप कर लूंगा, मैं देखो हाँ मैं पिकअप कर लूंगा, तो पता चला है पिकअप करेगा कि नहीं, है ना, डर लगता रहता है मन में, आएगा कि नहीं, जिस तरीके से बोला था मेरे को लगता नहीं है, तो वो डिफरेंस रहता है। I would request everyone to go on mute. जो भी एक जन बोल रहा है सिर्फ वही अनम्यूट रहे, बाकी सब प्लीज म्यूट हो जाए। दूसरों को भी Going ahead, ये चीजें अपने ने एक सिंपल वर्ड सेंटेंस में देखी, एक ही सेंटेंस में देखा, अलग अलग वर्ड का एम्फेसिस, फिर एक ही पर्टिकुलर वर्ड पे एम्फेसिस देखा। अभी गोइंग बैक टू अवर प्रैक्टिकल वर्ड, बट जब हम ऑफिस जाएंगे, जब हम बैलेंस शीट पे जाएंगे, तब हम डिफरेंस क्या क्रिएट कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक, तो आई विल गिव यू अ सिनेरियो अगेन। ठीक है, तो अगर किसी को ये बताना है कि ईयर ओवर ईयर ग्रोथ फिगर्स है, चाहे आप एग्जांपल ले सकते हो सेल्स का, रेवेन्यू का, जो भी ग्रोथ आपको दिखाना है जैसे भी वो, या आपको वो लास्ट स्टेटमेंट दिखाना है कि देयर इज डिप इन नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एंड ये चीजें लोगों को याद रहे, वो आप कैसे बोलोगे? क्विक, ये चीजें हम कैसे बोलेंगे? क्विक, who will try? यश will try. यश ने कुछ भी नहीं बोला। यश, are you there? कि यश फोन रख के चला गया है कनेक्ट करके? उसके अलावा कौन है? मैम कैन यू रिपीट, क्या ट्राई करना है? मैं ये बोल रही हूँ कि अगर ये चीजें आपको रिपीट करनी है, ये जो अभी आपको पीपीटी दिख रहा है, हाँ, तो उसको सामने वाला से तो सुने नहीं, उस चीज को याद रखे, वो दिमाग में रहे, वो कैसे करेगा? कौन ट्राई करेगा? नंदिनी, नंदिनी, are you there? Ma'am, can I will like try. Yeah, tell me.
हेलो Yes, tell me. ओके मैम सपोज आई टेक रिलायंस का एग्जांपल ले रहा हूँ, कल उसका क्वार्टर रिजल्ट आया वैसे, so I will say like year on year growth of Reliance have dropped year on year basis by 44% due to this reasons, and I will start like that. I will emphasize on percentage क्योंकि figure शायद लोगों को याद ना रहे, वो percentage normally people को याद रहता है. Good, very good. और कुछ? अभी कौन डिप वाला लास्ट वाला बताएगा? See, when we talk I'll try, about, ma'am. yeah, हाँ. yeah, Haji. As far as our industry, मतलब particular industries को target करके, as far as our industries, the deep non-operating income. However, the industry rate is 12%, but due to the sectoral change, we have to reduce our increase or non-operating income like that. ठीक है. Good. See, when we talk about numbers, अगर समझो हम किसी को अपनी कंपनी के numbers बता रहे हैं, ठीक, and if we only talk about purely number, के year on year growth is 30%, past and present revenue targets are this, and the number of sales lead generated is 20% high, yeah, it's 5,000 now. तो क्या होता है, लोग अभी सुनेंगे, ठीक, but they may not carry along, there will be no takeaways. But the moment you back it up with the story, कि year on year, जैसे राहुल ने बोला कि year on year growth is 20% because of this. तो क्या होगा कि सामने वाला will buy the story and story remains here. That's the reason the person will remember that there is a growth. Same way, अगर मेरे को dip की बात करनी है, ठीक है ना, तो अगर dip सही में dip है and if it is loss, तो मेरा tonality कैसा होगा? There is a dip in non-operating income. But अगर ये dip actual dip नहीं है and मुझे ये बताना है there is a dip in non-operating income, but because we have lost the interest income and that money which we had invested in receiving interest income is invested in operating business and we have expanded the office and that is the reason our sales has increased. ठीक है, तो अभी क्या हुआ, वो डिप को मैं कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रही हूँ, इसलिए जब मैं डिप वर्ड यूज कर रही हूँ तो भी मेरा टोन डिप नहीं हो रहा है. When you generally talk about loss, your tone goes down. As initially वो बंदा अपना फेलियर बता रहा था तो भी खुशी से बता रहा था, क्यों? क्योंकि उसके पीछे सक्सेस था. अगर मैं पीछे की स्टोरी ना बताऊं और सिर्फ इतना ही भले ब्लंट टोन में बोलूं या सेम टेम्पो में कि नहीं देयर इज अ डिप इन द इनकम, तो सामने वाला क्या स्टोरी जाने बिना के लॉस रही नॉन ऑपरेटिंग इनकम में. सो when you talk about facts and figures purely, people tend not to listen to you until and unless you fix a story behind it. So story creates buy-in. Story sticks to your mind. Story gives behavior. And वो क्या होता है कि लोग सुनते हैं तो याद रहता है, सिर्फ नंबर किसी को याद नहीं रहते क्योंकि उसमें वो ह्यूमैनिटी टच नहीं आता. There is no humanity touch when you talk only about purely about numbers and figures. That's where you lose interest of people, है ना? So bullet points and raw data simply don't elicit their kind of response from us. So that's the reason we need to back it up with this story. So when we talk about numbers in our day-to-day business, we need to back it up with this story to bring along the tonality and let people understand our true feeling. Yes? Any questions? I'm nearly to the verge of ending this session. So do we have any questions? Ma'am, can you give the idea how can we put
it in our day-to-day life, make it a habit. This type of communication is very good, but we cannot, what steps can I take to develop this? Means initially. इनिशियली देखो, कोई भी चीज हमको करना होता है तो इंटेंशनली करना पड़ता है. When you are talking to your friends, when you are talking to your family, you intentionally try to bring a pause. हमको आदत नहीं है ना, बहुत नॉर्मल वे में तुम बोलने का ट्राई करते हो, बट तुम बीच में कोई सेंटेंस में पॉज लाओ और देखो सामने वाले को डिफरेंस पता चलता है कि या if somebody is not listening to you, try, just don't go and tell them you're not listening to me. Try to lower down your pace, try to lower down your volume. भले ही नॉर्मल पिच में बात करते बीच में देखो वो लोग सुन रहे हैं. When I do face to face this trainings, and if I'm in corporate and जब leaders बैठते हैं, team leaders and managers and senior managers, they tend to use their phones. Now, एक लेवल के बंदों को आप बोल सकते हो कि भाई फोन साइलेंट करो, एक लेवल के बंदे से आप एक्सपेक्ट करते हो. सीनियर मैनेजमेंट लेवल को मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि काइंडली कीप योर फोन ऑन साइलेंट मोड, यू कैन यूज योर फोन ओनली ड्यूरिंग ब्रेक टाइम, है ना. तो अभी उसको मुझे बोलना है ये चीज विथ टोनैलिटी, सो दैट they don't feel offended, क्योंकि at times audience is way beyond than my age. उनका experience ही मेरी age जितना होता है, तो एक वो gap होता है. Now how do I tell them the same thing with humor, so that they may not feel bad, they may not feel offended, and they put their phone on silent? Tell me. मैम वी कैन से लाइक कि आप जो बोलना चाह रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वो जो ऑडियंस है सामने उनको शायद कन्वीनियंट नहीं हो पा रहा है जब वो बात कर रहे हैं, तो क्या वो अगर इफ इम्पोर्टेंट नहीं है तो बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि पब्लिक का इंटरेस्ट बना रहे. So again they get offended that you are pinpointing me. किसी को भी अपने मैम कैन वी मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक तरह, सर कैन यू प्लीज पुट योर फोन इन योर साइड, मतलब आप क्या एक रिक्वेस्ट का भाव देखिएगा. we can make a कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं ना वो लोग, कोई रिक्वेस्ट उल्टा है तुम रिक्वेस्ट मोड से चालू करोगे ना तो दे विल नॉट लिसन टू मी, गारंटी. we can use a voice डब्बा. gain attention from this. We can go low, we can lower our voice and then go high, so that they see like, okay, what's new, so we can make, so that's do what that I generally do. The moment I see any of them using their phone, my pitch goes so slow कि शायद जो पहली लाइन वाला बंदा होता है ना उसको भी कुछ नहीं इतना सुनता है. And then they are like, can you be little louder? They tell me and then I raise my voice. तो जो भी बंदा फोन यूज कर रहा होता है ना वो अपने आप समझ जाता है कि मेरी वजह से ये ऊपर नीचे हो रहा है सर, एंड बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेट मी नॉट यूज माय. है ना, क्योंकि ये लेवल के बंदे को मैं बोल नहीं सकती, है ना. शायद उन्हीं में से एक बंदे ने मुझे हायर किया होता है ट्रेनिंग के लिए, और मैं उसको बोलूं भाई तू तेरा फोन साइड में रख दे, क्या होगा मेरा? दूसरी बार दे विल नेवर हायर मी. और यही जूनियर लेवल का जो पर्सन होता है उसको हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि भाई तुमको काम है तो तुम बाहर जाके बात कर सकते हो. जनरली आई डोंट डू दैट, नो. यानी आई हैव नाउ अगेन, शीतल, आई एम कमिंग बैक टू योर पॉइंट. शीतल, तो आपने बोला कि डे टू डे, व्हाई आई एम गिविंग यू दिस लॉन्ग स्टोरी. तो डे टू डे लाइफ में हाउ डू वी पुट दिस, या तो नाउ आई एम सो हैबिचुएटेड कि मैं अब जूनियर लेवल को भी कभी कुछ नहीं बोलती हूँ कि फोन साइलेंट पे रखो. आई यूज द सेम थिंग. सो वंस यू आर हैबिचुएटेड इट कम्स फ्रॉम विद इन, है ना. तो सेम थिंग नाउ, अगर अपने को ये चीज लानी है तो वी नीड टू डू प्रैक्टिस स्टार्टिंग फ्रॉम होम. एंड व्हेन यू स्टार्ट सीइंग मिरेकल्स वर्क ना, मेरा टोनैलिटी, मेरे को गुस्सा करना ही नहीं पड़ता, मेरा टोनैलिटी मेरा काम कर देता है ना. विदाउट रेजिंग वॉइस ऑल्सो यू कैन मेक पीपल टॉक टू यू, मेक पीपल लिसन टू यू, मेक पीपल फॉलो योर वर्ड्स.
विदाउट रेजिंग वॉइस या विदाउट शोइंग एंगर। मैम जी राहुल, जो एग्जांपल दिया उसमें अल्टरनेटिवली वी कैन, जैसे अगर हम वहां पे हमें वॉक करने अगर डिस्टेंस पे बैठे हैं तो वी कैन मूव ऑन देयर साइड, तो वो कॉन्शियस होके अपना फोन खुद ब खुद ही नीचे रख देते हैं। बट जैसे मैंने बोला ना कि अगर उस बंदे ने मुझे हायर किया है तो मैं उसको कॉन्शियस कैसे फील करा सकती मैं सिर्फ उनके साइड जाना, अपना कंटिन्यू अपना प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करते we do that that is पूरा also very good way। बट मेरे को वो टोनालिटी दिखाना था ना, that is non-verbal communication I'm doing but not tonality portion, that is the reason I didn't say। sometimes I do it with humor before beginning the session कि है ना, यहाँ पे अगर सीनियर लेवल के होते हैं कि most of them have an iPhone, तो फिर क्या होगा अगर किसी एक का फोन बजेगा ना तो सब लोग ढूंढेंगे किसका बजा, वो MI वाला सीन हो जाएगा। तो इफ यू पुट अवर फोन्स ऑन साइलेंट तो शायद वो चीज से हम बच जाएंगे एंड एक ही बंदा जिसका फोन बजेगा वही डिस्टर्ब होगा rather than disturbing the whole audience। if you guys agree to it we can go ahead and put our phones on silent। what say? I ask them and with full enthusiasm and with full humor and with smile everybody puts phone on silent। मैम आप हम किसी से आइस ब्रेक कैसे करें, मतलब स्पेशली अपने से जो हायर पोजीशन पे होते हैं उसके साथ आइस ब्रेकिंग करनी है तो हाउ शुड वी, इसमें टोन में क्या हम कर सकते हैं? एक तो फर्स्ट इवन बिफोर टोनालिटी कम्स स्माइल, ठीक है ना। when your smile tells people कि तुम जबरन हंस रही हो, एक तुम स्माइल से बता सकते हो कि तुम उसको अप्रोच कर रही हो। बोलते हैं लड़की हंसी तो फंसी, वो अप्रोचिंग वाला स्माइल होना चाहिए टू फर्स्ट ब्रेक। सेकंड, अगर आप नॉर्मल आइस ब्रेक ना ग्रीटिंग से भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि तुम्हारा कोई सीनियर है तो यू विल ग्रीट देम good morning, good afternoon, whatever। now again that depends how। good morning sir, how was the morning tea? वो बोला अरे मैं चाय पीता ही नहीं। oh I'm so sorry, I'm a tea person। तो यार मुझे चाय की आदत है तो I thought कि आपका भी होगा। maybe it's very good that you don't have that addiction। with greeting you can start। there are many ways but tonality again एक smile and enthusiasm से you can break ice। तुम जब बोलते हो गुड यू हैड योर टी, तेरा क्या जाता है चाय पी के नहीं पी, ये फीलिंग आता है ना, अगर वो बहुत काम में। बट अगेन वही चीज तूने गुड मॉर्निंग यू हैड योर टी, सामने वाला कभी नहीं बोलेगा कि तेरा क्या जाता है ना, वो फीलिंग नहीं है। मेक सेंस और नॉट? अगर तुमको नहीं लगता है तो बोलो आई टेल यू अनदर टोनालिटी। बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो क्विकली बिफोर आई रैप अप, अभी और कोई क्वेश्चन है? नहीं तो मैं 1-2 मिनट और लूंगी एंड देन वी विल रैप अप। एनी क्वेश्चन? क्विक। नो क्वेश्चन आई थिंक। सो जैसे कि हमने बोला था कि इट्स ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग, tonality is all about storytelling, so I will end this session also with one small story, ठीक है, क्योंकि अभी और कोई क्वेश्चंस नहीं है। तो एक गांव था, उसपे लॉर्ड इंदिरा बहुत अपसेट था, वो वहां पे पाप बढ़ गए थे एंड ऑल दोस थिंग्स। तो लॉर्ड इंदिरा ने बोला कि अब ना 12 साल तक तुम्हें ना इधर बारिश नहीं गिरेगी तुम्हारे यहाँ। सब वहां पे छोटा गांव था तो सारे फार्मर थे, तो सब टेंशन में, अरे अरे नहीं 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 बिना बारिश हम कैसे जिएंगे, ये होगा। वो सब लोग गए लॉर्ड इंदिरा के पास एंड प्रेयर करने लगे, प्लीज यार प्लीड करने लगे, सॉरी जो हुआ फलाना ढिंका, एंड प्लीज तुम बारिश दो, 12 साल बहुत लंबा टाइम होता है, हम नहीं रुक सकते। तो लॉर्ड इंदिरा ने बोला बारिश तभी होगी अगर 12 साल नहीं तो जब, है ना, शिव जी लॉर्ड शिवा अगर डमरू बजाए तो बारिश होगी। तो सारे भागे भागे लॉर्ड शिवा के पास,
भाई तू डमरू बजा। तब तक लॉर्ड इंद्र उसने सीक्रेटली शिव जी को भी बोल दिया कि खबरदार के डमरू बजाए, इन लोग को भगा देना इधर से। तो सारे फार्मर्स गए, तो लॉर्ड शिवा बोले कि नहीं नहीं मैं तो डमरू नहीं बजाऊंगा। बोले नहीं नहीं बजाओ बजाओ बजाओ। तो लॉर्ड शिवा ने भी बोले 12 साल के बाद बजाऊंगा, बजाऊंगा जरूर, तुमने रिक्वेस्ट किया बजाओ, मैं बजाऊंगा, बट मैं 12 साल के बाद डमरू बजाऊंगा। तो सारे फार्मर दुखी होके चले गए। पर एक फार्मर ऐसा था जो हर साल जब उसको सीड डालने थे डाला, जब उसको खुदाई करनी थी खुदाई करता रहा। सारे फार्मर्स, बाकी सारे गांव वाले उस पे हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे कि जब पता ही है बारिश नहीं होने वाली, टाइम एनर्जी सब वेस्ट कर रहा है, सीड्स वेस्ट कर रहा है। आखिर थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर उसने जब ये किया तो सारे फार्मर मिलके उसके पास गए कि समझाएं इसको, पागल हो गया बंदा। तो गए और बोले कि भाई तू क्यों हर साल इतनी मेहनत करता है, पता है ना बारिश नहीं होने वाली है, क्यों इतनी मेहनत करे जा रहा है, एनर्जी टाइम सब कुछ वेस्ट कर रहा है। तो वो बोलता है भाई देख 12 साल बाद जब बारिश गिरेगी ना तब तक मेरी प्रैक्टिस छूट जाएगी एंड आई विल forget the process of farming as well. So in order to save myself and not to forget this, I'm practicing this religiously कि कब मेरे को ग्रो करना है, कब मुझे खुदाई करनी है, कब मुझे सीड डालना है, कब मुझे क्या करना है, वो मैं करता हूँ। ये सुन के पार्वती जी गई शिव जी के पास एंड बोली कि वो बंदा तो प्रैक्टिस कर रहा है, भाई तू प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, 12 साल बाद तेरी इज्जत दाव पे आएगी क्योंकि तू डमरू बजाना ना भूल जाए, तब क्या होगा। तो एंजाइटी में लॉर्ड शिवा ने डमरू बजाया कि भाई मेरे को आता है कि नहीं, मैं भूल तो नहीं गया 3 साल में। एंड जब डमरू बजा तो क्या हुआ होगा, बारिश बारिश गिरी तो पूरे गांव के खेत तो सूखे थे, ना सीड थे ना कुछ, और ये फार्मर ने अच्छी सी फसल ली। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज if we keep practicing, then only we will get the free. Kital, we need to keep practicing in order to learn the tonality. है ना? Yes, ma'am. ठीक है? With this story, I would end the session. Your feedbacks are most welcome back. ठीक है, मैं किसको एक जन को किसी को नंबर दे सकती हूँ मेरा, ठीक? हाँ राहुल, ये बिफोर यू एंड एक वोट ऑफ थैंक्स तो बनता है इतने अच्छे सेशन के लिए। थैंक यू सो मच। नॉर्मली हम एज ए विकासा मेंबर हम लोग बहुत सारे सेशंस करते हैं और अभी तो वेबिनार चल रहा है तो मेरे घर पे मैं रोज देखता हूँ, मेरे को साथ में मेरी फैमिली भी होती है और कभी मेरी बहन मेरे साथ नहीं बैठती, और अब तक जब उसका लेक्चर चालू हुआ तब तक वो स्पेशली बैठी थी मेरे साथ कि उसको कुछ मजा आ रहा था, कुछ नया सीखने मिल रहा था। सो इट वाज नॉट जस्ट हमारे लिए भी था कि छोटे से लेकर बड़ों के लिए सबके लिए था, और हमको पता था टोनालिटी इम्पोर्टेंट है, बट उसको यूज कैसे करना वो आज ज्यादा क्लियर हुआ मुझे भी, और आई होप बाकी सबको भी बहुत ज्यादा क्लियर हुआ होगा। थैंक यू मैम आपके स्पेशल सेशन के लिए। You know, with tonality, you won't believe, using my tonality, I have even told my boss आज 2 घंटे लेट आऊंगी, है ना? With tonality, I have worked a lot and लोग बोलते थे लड़की है इसलिए बेनिफिट, गर्ल बेनिफिट मिलता है, बट बॉस गर्ल बेनिफिट नहीं मिलता है, हाउ यू से वो बेनिफिट है ना, गर्ल बेनिफिट नहीं मिलता है क्योंकि प्रमोशन गर्ल बेनिफिट से नहीं मिलता है, मैंने स्टिल प्रमोशंस भी लिए थे, बट इट इज मोर ऑन टोनालिटी, दैट्स हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, है ना? So with this I would really wish that we try and practice to work on our tonality, which will work miracles for you guys. Yes, so wish you good luck, and I will share my contact number. I can share with one of them. If you still have any questions or any query, you are stuck somewhere, you guys can reach me through that one person. Now you tell me to whom do I share my number. Here I will send privately, maybe to Nidhi. I think Nidhi hai ki nahi? Haan, Nidhi hai. I think Nidhi is the host, right? So I'll just send my contact number to Nidhi. You guys can reach me if you still have any queries. Ma'am, I would like to
ऐड कि इफ अगर किसी को क्वेश्चन है तो दे कैन शेयर विद विकासा मेंबर्स आल्सो, तो हम लोग आगे निधि मैम को फॉरवर्ड कर देंगे। आई डोंट थिंक निधि मैम का नंबर सबके पास होगा। You tell me किसको मैं शेयर करूँ? I can share it with one person, and then you guys can. मी और केवल हम दोनों ही विकासा कमेटी मेंबर्स है, तो अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी हो या फिर किसी को भी कुछ सजेशंस हो, दे कैन फॉरवर्ड इट। So how do I share then? चलो नोट कर लो जितने भी बंदे बैठे हो, छोड़ो। चल राहुल, you note it down. पेन पेपर है तेरे पास लेकिन बच्चा? Yes ma'am. Yeah, it's 7600 74 6979. Yes ma'am. Yeah, 7600 74 6979. Yeah. Yeah. Okay. Thanks for being lovely, audience. And if you have any question, do post it to me. Yeah. Thank you so much. Bye bye. Have a lovely Thank you, evening. ma'am. Bye. Thank you so much. Thank you, ma'am.